Hey, good morning. Uh, Welcome to the new segment that is series of science, and we are going to start the first chapter from this class 9 standard, and that chapter is called as the laws of motion. Now I am going to share the screen for you guys. So let's begin for the chapter laws of motion. Yes, तो laws of motion के अंदर आप पढ़ने वाले हो पहला टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज फोर्स. Next is motion. Next is distance, displacement, speed, velocity, acceleration, laws of motion, and equations of motion by using the graphical methods. And here it is given that comparison between the distance between the speed and velocity. Yes, so one by one we will start that point. So first of all, I want to discuss about the force. Yes, as we have discussed in the offline classes or online classes. So here it is here, that is definition, and definition is given for the force, that is product of mass and acceleration. Yes, so there is a, you can remember that force is equals to ma. Yes, F is equals to mass into acceleration. तो आप रिमेंबर कर सकते हो फॉर्मूला, F is equals to force is equals to ma, that is ma. तो force is equals to mass into acceleration. Yes, the next is now we are defining the next definition for the force. तो force is equals to mass into acceleration, ये फॉर्मूला लिखने के बाद उसको इक्वेशन नंबर 1 दिया है, आप देख सकते हो. और बट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन. यस, तो एक्सेलरेशन का मतलब क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एंड हियर इट इज गिवन दैट ए इज इक्वल्स टू वी बाई टी. यस, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन ये जो एक्सेलरेशन का वैल्यू आया है ए इज इक्वल्स टू वी बाई टी, ये आप पुट करोगे इक्वेशन नंबर 1 में. तो आपका इक्वेशन नंबर 1 बनेगा दैट इज एफ इज इक्वल्स टू एम इंटू, इंस्टेड ऑफ ए यू कैन राइट वी बाई टी. यस, तो आपका जो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी है इट इज कॉल्ड एज मोमेंटम. यस, उसको बोलते हैं मोमेंटम. तो मोमेंटम का जो डायग्राम है या डेफिनेशन है, तो P इज इक्वल्स टू, मोमेंटम इज डिनोटेड बाय P एंड P इज इक्वल्स टू M इंटू V. यस, मास एंड वेलोसिटी. तो आपका जो इक्वेशन बनेगा दैट फोर्स इज इक्वल्स टू, इंस्टेड ऑफ M इंटू V यू विल राइट P एंड P बाई T. यस, फोर्स का वैल्यू आया P बाय T, and according to the above formula we can define that rate of change of momentum is also called as force. Yes, it was so funny. ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन बताया आपको, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन दैट इज एफ इज इक्वल्स टू मा एम ए. आप ऐसा उसको बाय हार्ट कर सकते हो. यस, एंड अगेन दैट एफ इज इक्वल्स टू पी इंटू टी, पी बाई टी, सॉरी पी बाई टी, and that is called as rate of change of momentum. I have derived that formula. And next I have given the SI units and CGS unit for the force. Yes, so units are there. There are two types of units. You can see there SI units and CGS unit. So SI unit is Newton and CGS unit is dyne. Yes, force is also measured in Newton. Newton was the scientist who invented the formula force of attraction, Newton's universal gravitational force. We will see in the 10th standard. Yes, CGS unit है उसका dyne, balanced force. Now there are the types of force. We will discuss about the types of force. Yes, just a minute. And here is about the type of force. There are two types of forces are there. I will zoom it for you people. Balanced force and unbalanced force. Yes, for बैलेंस फोर्स का डेफिनेशन दिया है वहाँ पे.
force acting on an object which does not change the state of motion or uniform motion of its are called as balance force. Yes, उसका जो मोशन रहेगा उस ऑब्जेक्ट का, सपोज ऑब्जेक्ट एक मोशन के अंदर है और उसका स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, एक सेकंड के लिए वो 10 मीटर जा रहा है. यस, तो वो ऑब्जेक्ट अगर उसको बैलेंस फोर्स रहेगा दोनों साइड से, फ्रॉम द अपोजिट साइड, लेफ्ट एंड राइट साइड, तो वो बैलेंस होगा, वो 10 मीटर पर सेकंड से ही अपने स्पीड को कैरी करेगा. यस, या अनबैलेंस फोर्स के अंदर एग्जांपल आएगा, यहाँ पे डेफिनेशन दिया है, द रिजल्टेंट ऑफ टू अपोजिट फोर्स एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट ब्रिंग्स इट मोशन. यस, दो अपोजिट फोर्सेस है, एक ऑब्जेक्ट है उसके अपोजिट में एक आरएचएस साइड एंड एलएचएस साइड में दो अपोजिट फोर्सेस के ऊपर दे आर अनइक्वल फोर्सेस. यस, सपोज एक साइड से, जैसा आप बचपन के अंदर एक रस्सी खींचने का ये गेम खेलते थे, ठीक है, तो एक साइड से अगर एलएच साइड से 2 लोग लगा दिए और आरएच साइड से 5 लोग लगा दिए, ठीक है, कौन जीतेगा? जहाँ पे 5 लोग हैं आरएच साइड वाला वो जीतेगा, ठीक है. तो दैट इज कॉल्ड एज अनबैलेंस्ड फोर्स. यस, these were the types of force. Next we will discuss about the next type of force, that is called as based on their applications. Yes, based on application there is a contact type of force and non-contact type of force. Yes, so we will see first of all contact type of force. What are the contact type of force and what is called as? Yes, so definition दिया है यहाँ पे, for that act on the body either directly or through a medium are called as contact type of force. ठीक है, सपोज एक स्टोन है, स्टोन को आपको उठाकर रास्ते से उठाकर बाजू में करना है. यस, तो आपने क्या किया, उस स्टोन को पकड़ा और उसको रास्ते से बाहर कर दिया. दैट इज जब आप उस कांटेक्ट में जाओगे, उसके कांटेक्ट में जाओगे उस पत्थर के, यस, तो आपको that stone feels the contact type of force. Yes, here is the example, that is a muscular force. Yes, one by one we will see here. Here is the example for that, muscular force, mechanical force and hand pump. मैकेनिकल फोर्स के अंदर हैंड पंप आया है एंड फ्रिक्शन फोर्स के अंदर आप देख सकते हो दैट आई विल शो द फिगर हियर डायग्राम. यस, और यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज मैकेनिकल फोर्स, आप देख सकते हो. यस, मैकेनिकल फोर्स के अंदर क्या कर रहा है, एक आदमी है डंबल्स मार रहा है, तो वहाँ पे आप देख सकते हो द डंबल्स इज इन द हैंड, ही इज होल्डिंग द डंबल्स इन हिज हैंड. ठीक है, तो वहाँ पे उसका कॉन्टैक्ट आया. यस, नेक्स्ट इज दैट इज मैकेनिकल फोर्स एंड मैकेनिकल फोर्स इज नथिंग बट हियर यू कैन सी द फिगर ऑफ हैंड पंप, हाउ द हैंड पंप इज ऑपरेटिंग. एक अगर आप उस हैंडल को ऑपरेट कर रहे हो, ठीक है, तो व्हेन यू विल डू द पोजिशन ऑफ द हैंडल इन द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड पोजिशन, वॉल गेज ओपन एंड क्लोज. ठीक है, तो वहाँ से आपको पानी मिलेगा आउटकम में. यस, तो मैकेनिकल फोर्स के अंदर यहाँ पे हैंड पंप आपका जो है क्लियर हुआ. एंड हियर इज अ फनी एग्जांपल फॉर दैट, फ्रिक्शनल फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्स के अंदर आप देख सकते हो दैट वन ऑर्गेनिज्म इज ट्राइंग टू रीच ऑन द ट्री. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 3 एग्जाम्पल आपको विद द बेसिक एनिमेशंस यहाँ पे दिखाया है. यस, नाउ वी आर गोइंग टू सी द नॉन कॉन्टैक्ट टाइप ऑफ फोर्स, जो कि हम फील नहीं कर सकते. द फोर्स दैट एक्ट थ्रू द स्पेस विदाउट मेकिंग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. यस, वो किसी चीज़ के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के अंदर नहीं आएगा. यस, नाउ आई एम सिटिंग, तो मुझे भी एक फोर्स है दैट इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन मी, बट आई कांट फील द ग्रेविटेशनल फोर्स. या आप जो ये वीडियो देख रहे हो, तो आप जहाँ पे बैठे हो तो आपको भी एक फोर्स एक्ट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फोर्स. यू आर नॉट फीलिंग दैट.
ठीक है. तो दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स इज एग्जाम्पल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज एग्जाम्पल, एंड मैग्नेटिक फोर्स. यस, तो आयन पार्टिकल्स आर गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द मैग्नेट. यस, these were the points that we have studied in that कंटेंट. यस, सब टॉपिक के अंदर देखा है हमने, दैट इज फोर्स. ये पहला टॉपिक है, बेसिक टॉपिक लिया है मैंने. उसके अंदर आपको डेफिनेशन बताया, फोर्स का फॉर्मूला बताया, यूनिट बताया. यूनिट के अंदर एसआई यूनिट है, सीजीएस यूनिट है. वी हैव सीन द टाइप्स ऑफ फोर्स. यस, वी हैव सीन द type of force. Nextly we will discuss about, now I am going to close this point and we will discuss for the next point, that is called as motion. Yes, and here is the definition of motion. You can see here definition: change in position of object with respect to time. Yes guys, एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ऑब्जेक्ट सपोज आप ट्रैवल्स में बैठे हो या कार में बैठे हो या बाइक चला रहे हो. यस, तो व्हेन यू विल स्टार्ट टू एक्सेलरेट, तो आपका जो पोजीशन चेंज होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के हिसाब से टाइम भी चेंज होगा, आपका पोजीशन भी चेंज होगा. तो दैट इज कॉल्ड एज मोशन. यस, दैट इज कॉल्ड एज मोशन. नेक्स्ट इज टाइप ऑफ मोशन. टाइप ऑफ मोशन के अंदर आप देखोगे दैट इज कॉल्ड एज लीनियर मोशन, रोटरी मोशन एंड ऑक्सीलेटरी मोशन. ठीक है, ये तीन टाइप है मोशन का, तीन टाइप है. लीनियर मोशन है, रोटरी मोशन है, ऑसिलेटरी मोशन है. यस, तो लीनियर मोशन के अंदर गाइस, लीनियर मोशन के अंदर क्या होगा, यहाँ पे डेफिनेशन दिया है उसका: मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन अ स्ट्रेट लाइन. यस, लीनियर है तो एक लाइन के अंदर ट्रैवल करेगा, और कर्व पाथ यहाँ पे दो भी दिया है. यस, लीनियर मोशन के अंदर क्या करेगा, वो पार्टिकल ट्रैवल्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट बट इन अ स्ट्रेट लाइन और कर्व पाथ. यहाँ पे दोनों मैंने डेफिनेशन दिया है: लीनियर, रेक्टिलिनियर मोशन एंड कर्व लीनियर मोशन. यस, द मोशन ऑफ पाथ ऑफ मोशन इज अ स्ट्रेट लाइन. यस, उसका जो मोशन का पाथ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, और कर्व लीनियर का मोशन का पाथ होगा दैट इज कर्व, एज द नेम इंडिकेट्स हियर. यस, इट इज़ वेरी सिंपल. मैंने आपके लिए बहुत सारे सिंपल टॉपिक्स ऐसे बनाए हैं. ठीक है, तो रेक्टिलिनियर मोशन के अंदर क्या आएगा, द ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन, एंड कर्व लीनियर मोशन के अंदर क्या आएगा, द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज अलोंग अ कर्व, the path of motion is curved. Yes, and here you can see for the types of, next type of motion is here, that is called as rotary motion. And rotary motion, there is the definition: motion, rotation of body about its own axis. Yes, that is called as rotary motion. अगर आप एग्जाम्पल ले सकते हो, आप मेले में गए तो वहाँ पे एक मैकेनिज्म रहता है, मैकेनिकल मैकेनिज्म इज देयर. आप झूले में बैठते हो एंड इट इज़ ट्रैवलिंग या इट इज़ रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस. ठीक है, एक सेंटर में पोल रहता है, आपको इमेजिन करना पड़ेगा, आई एम एक्सप्लेनिंग दैट. एक सेंटर में पोल रहता है और पोल के अराउंड में कुछ बैठने के लिए आपको घोड़े बनाए जाते हैं, दैट इज़ वुडन के रहते हो, और वहाँ पे आप बैठ के विल फील द रोटरी मोशन. यस, उसको रोटेट किया जाता है अबाउट इट्स ओन एक्सिस. That is the best example, you can relate it. Yes, next is oscillatory motion, the motion of body about its mean position. Yes, the oscillation, yeah, pendulum, you can take the example of pendulum. Yes, it is very simple. So we have seen here the motion, and we have seen the definition and types of motion. Yes, now we are going to start the next point, that is called as distance. Yes, next point is called as distance. Just a minute guys. So we will start about the distance. Next point, that is third point from this chapter. Yes, very simple it is here. That is the definition of distance. You can see here, definition of distance is given that length of actual path covered by an object. ठीक है, what is the definition of distance? जो भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करेगा, एक्चुअल पाथ्स उसका जो रहेगा वो किसी और पॉइंट के ऊपर जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड एज डिस्टेंस. यस, कोई भी ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस ट्रैवल किया, उस डिस्टेंस को डिस्टेंस बोलते हैं. यस, इट इज़ वेरी सिंपल. एंड एसआई यूनिट इज हियर.
SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर, डिस्टेंस को मेजर करते हो आप मीटर के अंदर, या इट इज आल्सो मेजर्ड इन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के अंदर भी मेजर करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज CGS यूनिट। और डिस्टेंस का जो क्वांटिटी होगा वो होता है स्केलर इन क्वांटिटी, ठीक है, वो देर इज नो नीड फॉर द डायरेक्शन, यस, तो इट इज स्केलर इन क्वांटिटी, ठीक है। मैंने आपको ये फंडामेंटल क्वांटिटीज के अंदर बताया था, यस, फिजिकल क्वांटिटी एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी के अंदर आएगा फिर से स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, यस, द स्केलर क्वांटिटी, द क्वांटिटी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय ओनली एंड ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है, उस क्वांटिटी को बोला जाता है स्केलर क्वांटिटी, यस। सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के हिसाब से आप उसको रिलेट करते हो, यस, या मैग्नीट्यूड ही रहता है उसके ऊपर, तो दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड एज स्केलर इन क्वांटिटी, यस। तो यहाँ पे डिस्टेंस, ये जो पॉइंट है आपका, ये भी कवर होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। सेम पॉइंट्स आई हैव गिवन, सिमिलर पॉइंट्स, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो आप, डिस्टेंस के अंदर दिया था, डेफिनेशन दिया था, SI यूनिट दिया था, CGS यूनिट बताया था, फिजिकल क्वांटिटी कौन सा है बताया था, वैसा ही डिस्प्लेसमेंट है, चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन दैट इज कॉल्ड एज चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ गिवन डायरेक्शन, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का चेंज इन पोजीशन के अंदर चेंज होगा, बस इतना ही है, सिंपल। एंड SI यूनिट, मोस्ट द डेफिनेशंस आर सेम फॉर द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का SI यूनिट क्या आएगा, मीटर आएगा, CGS यूनिट क्या आएगा, सेंटीमीटर आएगा, यस। आप डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस को मेजर कर सकते हो मीटर या सेंटीमीटर के अंदर। और उसका जो फिजिकल क्वांटिटी आएगा, फिजिकल क्वांटिटी, इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी, यस, इट इज़ वेक्टर इन क्वांटिटी, क्योंकि उसको डायरेक्शन दिया जाता है, यस, डायरेक्शन मैटर्स। फिजिकल क्वांटिटी के अंदर मैंने दूसरा टाइप बताया था, दैट इज कॉल्ड एज वेक्टर क्वांटिटी। एंड द क्वांटिटी विच इज रिप्रेजेंट, व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी, द क्वांटिटी विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज वेक्टर इन क्वांटिटी। सपोज आपको किसी ने एड्रेस पूछा, नया आदमी है शहर के अंदर, आपके शहर के अंदर, और उसने एड्रेस पूछा आपको, ठीक है, तो आपने उसको एड्रेस बताया, दिस पॉइंट इज अबाउट द 10 किलोमीटर्स फ्रॉम नॉर्थ साइड, फ्रॉम ईस्ट साइड, ठीक है। आपने उसको डायरेक्शन भी दिया एज वेल एज यू हैव गिवन फॉर द 10 किलोमीटर डिस्टेंस भी दिया है, दैट इज कॉल्ड एज मैग्नीट्यूड बताया आपको, आपने उसको एज वेल एज यू हैव गिवन द डायरेक्शन आल्सो, नॉर्थ में जाना है, लेफ्ट में जाना है, राइट में जाना है, ठीक है। तो आई विल क्लोज दिस पॉइंट हियर। नाउ वी आर गिविंग द नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द स्पीड, वी विल डिस्कस अबाउट द स्पीड, and here some magic triangle is given for the speed, yes, one by one we will see that what is the definition. First of all we will learn about the definition, distance covered by an object per unit time, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है, उसने डिस्टेंस कवर किया और कितने टाइम में किया, ये भी हम मेजर करने वाले हैं, तो आपको स्पीड मिलेगी। तो यहाँ पे फॉर्मूला दिया है, और द फॉर्मूला इज दैट इज स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला आप देख सकते हो, यहाँ पे फॉर्मूला दिया है, और इस फॉर्मूला को याद करने की ज़रूरत नहीं है गाइज, इसके लिए मैंने एक मैजिकल ट्राइंगल दिया है, यस, यू कैन सी हियर मैजिकल ट्राइंगल। तो यहाँ पे क्या है, एक ट्राइंगल के अंदर डिस्टेंस ऊपर लिखा है, स्पीड एक साइड में लिखा है, टाइम एक साइड में लिखा है, ठीक है, आप देख पा रहे हो, यस। तो स्पीड इज इक्वल्स टू, स्पीड को मैंने हाईलाइट किया बाय द कलर, ठीक है, स्पीड को हाईलाइट किया, स्पीड इज इक्वल्स टू जो भी अनहाइलाइटेड पार्ट है, यस, दैट इज द फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। नेक्स्ट उसी फॉर्मूले को मैंने टाइम को, अगर आपको उस प्रॉब्लम के अंदर आपको फाइंड आउट करना है टाइम, यस, तो डिस्टेंस दिया है, स्पीड दिया है, आपको टाइम फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे टाइम को हाईलाइट करोगे, जो अनहाइलाइटेड पार्ट रहेगा दैट इज डिस्टेंस बाय स्पीड, इट इज द फॉर्मूला फॉर दैट टाइम, यस। एंड नेक्स्ट वैसा ही आप देख सकते हो, दैट इज फॉर
द डिस्टेंस। अगर आपको वही दिया है, स्पीड दिया है, स्पीड एक ऑब्जेक्ट का स्पीड है कितने, वो स्पीड और वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, लेकिन आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करने का है और टाइम दिया है आपको, ठीक है, तब आप उस टाइम के अंदर या उस केस के अंदर डिस्टेंस को हाईलाइट करोगे इस ट्रायंगल के अंदर। तो डिस्टेंस को हाईलाइट किया तो डिस्टेंस जो अनहाइलाइटेड पार्ट रहेगा वो आपका फॉर्मूला रहेगा, दैट स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। यहाँ पे डिवीजन का साइन है, दैट इज टाइम इनटू टाइम। अगर फॉर्मूला निकालोगे लिए टाइम के लिए, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, ये डिवाइड में उसके नीचे एक लाइन आ रहा है तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। और अगर डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड, और एक वर्टिकल लाइन है स्पीड और टाइम के अंदर, तो आप यहाँ पे स्पीड इनटू टाइम कर सकते हो। यस, यू कैन गेट द here you can get the formula for the speed. Yes, now we will discuss about the units. SI unit of the speed is मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस हमने देखा है पहले, दैट इज मेजर्ड इन मीटर, एज वेल एज टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड। तो डिस्टेंस, यहाँ पे स्पीड का जो फॉर्मूला लिखा है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज मेजर्ड इन मीटर एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड। तो मीटर पर सेकंड इसका एसआई यूनिट रहेगा। सीजीएस यूनिट सेम रहेगा, दैट इज मीटर को, अब मीटर को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे बाय सेंटीमीटर से, तो सीजीएस यूनिट रहेगा दैट इज सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम एंड एस फॉर सेकंड। तो सीजीएस यूनिट विल बी सेंटीमीटर पर सेकंड, टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड। एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट के अंदर टाइम सेकंड के अंदर मेजर किया जाता है। और आप देख सकते हो यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी इट इज स्केलर इन क्वांटिटी बिकॉज डिस्टेंस इज स्केलर इन क्वांटिटी, ठीक है। डिस्टेंस को आप मेजर करते हो ओनली इन मैग्नीट्यूड, तो इट इज ए स्केलर इन क्वांटिटी। यस, तो यहाँ पे पूरा अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो थोड़ा सब टॉपिक, यस आप ले सकते हो स्क्रीनशॉट, इसका समझने में बहुत आसानी होगी आपको। डेफिनेशन दिया है, फार्मूला दिया है हर चीज़ का, एसआई यूनिट है, सीजीएस यूनिट है, और उसका जो क्वांटिटी रहेगा कौन सा क्वांटिटी है वो भी है, ठीक है। नेक्स्ट वी विल गो टू द पॉइंट दैट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। वेलोसिटी का भी आप देख सकते हो जैसा रिलेट करके दिया था। आई विल जस्ट होल्ड द स्क्रीन सो फॉर एज आपको दिखेगा यहाँ। We will later on discuss the point that is different between the speed and velocity. Yes, तो velocity है उसका definition दिया है, velocity का definition दिया है that is the rate of change of displacement per unit time, ठीक है। आपको ये चैप्टर पूरा ऑफलाइन पढ़ाया था मैंने और ऑनलाइन जूम मीटिंग के ऊपर भी पढ़ाया था, बट कुछ लोगों का जो पोर्शन वहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ तो उन लोगों के लिए मैंने ये वेब सीरीज़ या क्रैश कोर्स के लिए सीरीज़ चालू किया साइंस का। तो वेलोसिटी का यहाँ पे पहला डेफिनेशन दिया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट इज मेजर्ड इन वेक्टर, इट इज़ फिजिकल क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट का फिजिकल क्वांटिटी क्या है, वेक्टर इन क्वांटिटी। तो यहाँ पे इसका फिजिकल क्वांटिटी वेलोसिटी का भी वेक्टर इन क्वांटिटी आएगा। फॉर्मूला दिया है, देखो स्पीड फॉर्मूला इज गिवन हियर, वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, यहाँ पे डिवीजन का सिंबल दिया है डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम के बीच में। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम एंड एसआई यूनिट दिया है, एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट इज सीजीएस यूनिट, यस डिस्प्लेसमेंट इज मेजर्ड इन मीटर एंड डिवाइडेड बाय टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड। तो मीटर पर सेकंड इसका एसआई यूनिट रहेगा। सीजीएस यूनिट क्या रहेगा, दैट इज सेंटीमीटर पर सेकंड, वेरी सिंपल। एंड नेक्स्ट इज फिजिकल क्वांटिटी, इसका क्वांटिटी जो रहेगा दैट इज वेक्टर इन क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस फॉर द कंपैरिजन। यहाँ पे मैंने कुछ दिया है एंड दैट इज कॉल्ड एज कंपैरिजन बिटवीन द स्पीड एंड वेलोसिटी। यस, तो इसके लिए मैंने एक कंपैरिजन का चार्ट बनाया है, तो आई विल ओपन दैट चार्ट।
यस, हियर इज अ चार्ट दैट इज आई हैव रिटन, मैंने आपके लिए और भी सिंपल बताया है, ठीक है। स्पीड एंड वेलोसिटी आप ऐसे ही दो कॉलम बनाते हो और दोनों कॉलम के अंदर आप लिखते जाते हो उसके अंदर, ठीक है। बट मैंने आपके लिए क्या किया है, एक और थर्ड कॉलम ऐड किया है फॉर द पैरामीटर्स, ठीक है। आपको पहले क्या करने का है, ये बाकी सब छोड़ के आपको सिर्फ पैरामीटर्स के ऊपर ध्यान देने का है, ठीक है। तो पैरामीटर कौन कौन सा है यहाँ पे, डेफिनेशन है पहला, फॉर्मूला है, फिर डायरेक्शन है, डायरेक्शन रहेगा या नहीं रहेगा, फिजिकल क्वांटिटी है, और मूविंग ऑब्जेक्ट है, एंड एसआई यूनिट है। 6 पैरामीटर्स दिया है आपको, वी विल डिस्कस वन बाय वन, ठीक है। तो स्पीड का पहले आप डेफिनेशन बताओगे, दैट इज स्पीड इज इक्वल्स टू एंड डिस्टेंस, हियर द डेफिनेशन फॉर द स्पीड इज डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, ठीक है। यस, या डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, ऐसा ही लिखा है मैंने। तो दैट इज द डेफिनेशन। वेलोसिटी का उसके कंपैरिजन में डेफिनेशन बताओगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यस, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। नेक्स्ट इज फॉर्मूला, दैट इज स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी का फॉर्मूला दिया है, दैट इज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यस, यू कैन सी हियर। डायरेक्शन दिया है, डायरेक्शन इट हैज़ नो डायरेक्शन, इसके लिए डायरेक्शन मैटर नहीं करता स्पीड के लिए, और वेलोसिटी के लिए डायरेक्शन है, इट हैज़ डायरेक्शन। फिजिकल क्वांटिटीज दिया है, फिजिकल क्वांटिटीज, एंड इट इज अ स्केलर इन क्वांटिटी एज वेल एज दिस इज इन वेक्टर इन क्वांटिटी। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है एंड स्पीड इज स्केलर इन क्वांटिटी, ठीक है। मूविंग ऑब्जेक्ट है, मूविंग ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट कैन बी निगेटिव, ठीक है, कैन बी निगेटिव, प्लस माइनस हो सकता है, बट वेलोसिटी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट कैन बी निगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। सॉरी, जो स्पीड के अंदर बताया स्पीड कैन बी निगेटिव, बट वेलोसिटी कैन बी जीरो, कैन बी निगेटिव एंड कैन बी पॉजिटिव, यस। नेक्स्ट इज एसआई यूनिट, एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड रहेगा दोनों का ही। यहाँ पे जो कंपैरिजन होगा, ये कंपैरिजन का चार्ट आपको कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। दैट इज, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, सो यू विल रिलेट द थिंग्स, यस। तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एंड स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यस। In this way you can complete the comparison chart of the speed and velocity. Now as we have discussed the comparison between the speed and velocity, next point is about the acceleration. Yes, laws of motion का next जो point रहेगा वो है acceleration, और उसको मैं open करने जा रहा हूँ, and you can see here that is the definition for the acceleration, rate of change of velocity with respect to time. Yes, very simple it is, rate of change of velocity with respect to time. Yes, formula भी दिया है, acceleration is equals to change in velocity divided by time taken by an object. Yes, that is change in velocity, acceleration is denoted by a दिया है next step के अंदर, and a is equals to change in velocity, that is v minus u. v is a final velocity minus initial velocity. Final velocity is denoted by v and initial velocity is denoted by u. एंड टाइम टेकन इज डिनोटेड बाय टी, यहाँ पे मैंने आपको दिया है, यस। नेक्स्ट इज एसआई यूनिट, एंड एसआई यूनिट के लिए मैंने यहाँ पे दिया है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है, तो वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, उसका जो यूनिट रहेगा मीटर पर सेकंड रहेगा वेलोसिटी का यूनिट, एंड अभी हमने देखा है यस, एंड टाइम टेकन का यूनिट रहेगा, टाइम का यूनिट रहेगा सेकंड। जो डिनोमिनेटर में सेकंड है ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, ऊपर के पोर्शन के अंदर जो मीटर पर सेकंड है उसको, तो मीटर पर सेकंड इंटू 1/सेकंड, दैट इज कॉल्ड एज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यस। ऐसा यूनिट विल बी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और उसका जो सीजीएस यूनिट रहेगा दैट इज सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें हमने डिस्कस किया है एक्सेलरेशन के बारे में, यस। सीजीएस यूनिट डिस्कस किया है, एसआई यूनिट डिस्कस किया है। फिजिकल क्वांटिटी है, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, सो ऑब्वियसली उसका जो क्वांटिटी रहेगा वेक्टर इन क्वांटिटी रहेगा, ठीक है, यस। तो यहाँ पे जैसा कि हर पॉइंट के अंदर मैंने पैरेलल चीज़ें डिस्कस की है, दैट इज कॉल्ड एज डेफिनेशन
हर एक का मैंने डेफिनेशन बताया है, फॉर्मूला बताया है, यूनिट बताया है, यूनिट के अंदर सब यूनिट बताया है, एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट, फिजिकल क्वांटिटी बताया कौन सा है, दैट इज़ वेक्टर या स्केलार, ठीक है। और नेक्स्ट पोर्शन जो आएगा हमारा, अभी तक हमने इतना पोर्शन कंप्लीट किया है, दैट इज़ फोर्स, मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। यस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो है यहाँ पे आप देख सकते हो, लॉज ऑफ मोशन का जो है दैट इज कॉल्ड एज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय यूजिंग द ग्राफिकल मेथड, ठीक है। दो मेथड है, एनालिटिकल मेथड एंड ग्राफिकल मेथड। मैंने इस टॉपिक के अंदर सिर्फ ग्राफिकल मेथड को कवर किया है। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट लॉ यहाँ पे दिया है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यहाँ पे दिया है, आप देख सकते हो, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा? वो लॉ ऑफ इनर्शिया, एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, ठीक है, अंटिल यू विल इफ यू गिव द एक्सटर्नल फोर्स, जब आप उसको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करोगे तब तक वो रेस्ट के अंदर ही रहेगा। तो ये ऑब्जेक्ट लॉ ऑफ इनर्शिया है या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, यस। या अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में है, कंटिन्यूअस मोशन में, तो ऑब्जेक्ट वो मोशन में ही रहेगा अंटिल आप उसको एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके आप उसको स्टॉप कर सकते हो, यस। तो यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल है, एग्जांपल के लिए मैंने आपको डायग्राम दिया है लॉ ऑफ इनर्शिया का, यस। एक व्हीकल, एक आदमी व्हीकल चला रहा है और व्हीकल के अंदर बैठ के द व्हीकल इज इन मोशन, ठीक है, लेकिन आगे एक दीवार है, दीवार इज अ एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। आदमी ने क्या किया, गाड़ी चलाया तो दीवार को धड़कने के बाद ही विल फेल डाउन, ठीक है, वो गिर गए, यस, वो क्या करेगा, गिर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लॉज ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया देखा आपने, एक ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा, जब आप उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक वो मोशन में ही रहेगा। एंड एक ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही रहेगा। ये आपको समझने के लिए लॉ ऑफ इनर्शिया का एग्जांपल दिया है, आई विल जूम इट फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे मैंने लिखा है ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट विल रिमेन इन रेस्ट कंडीशन अनलेस एक्सटर्नल फोर्स एक्टेड ऑन इट, ठीक है। और मैंने एक्सप्लेन भी किया है इसको। और नेक्स्ट और में डेफिनेशन दिया है, ऑब्जेक्ट इज इन मोशन विल रिमेन इन मोशन अनलेस एक्सटर्नल फोर्स एक्टेड ऑन इट, ठीक है। तो दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, यस। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ क्या है? जैसा कि हमने देखा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, यस, एंड चेंज ऑफ मोमेंटम ऑकर्स इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। यानी कि जो फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन देखा था, एक्सेलरेशन इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी देखा था, दैट इज ए इज इक्वल्स टू वी बाई टी, एंड एफ इज इक्वल्स टू मिल जाएगा एम, दैट इज एफ इज इक्वल्स टू मिलेगा एम इंटू वी डिवाइडेड बाई टी। तो एम इंटू वी जो रहेगा, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, यस। मोमेंटम इज डिनोटेड बाय पी, तो P से डिनोट किया तो P इज इक्वल्स टू एम इंटू वी रहेगा। m इंटू वी की जगह आपने P का इस्तेमाल किया तो F इज इक्वल्स टू पी बाई टी आया, यस। अगर मैंने यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन हटा दिया तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F, ऐसा भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे डेफिनेशन आएगा या सेकंड लॉ ऑफ मोशन आएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड द चेंज ऑफ मोमेंटम ऑकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो ये सेकंड लॉ हुआ आपका। नेक्स्ट इज थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसको मैं थोड़ा हाइड करता हूं। थर्ड लॉ ऑफ मोशन दिया है आपको, एवरी एक्शन फोर्स इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स विच एक्ट साइमल्टेनियसली, यस। इसका डायग्राम भी दिया है मैंने, और सॉरी एक्सप्लेनेशन के लिए ब्रीफ किया है, तो यहाँ पे मैंने एक फोटो को ऐड किया है आपके लिए, ठीक है। जितना चाहे सिंपल, जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल बनाया आपके लिए।
तो यहाँ पे दिया है दैट इज मोमेंटम ऑफ ए आफ्टर कोलिजन, दैट इज कोलिजन होने के बाद, और बिफोर कोलिजन मतलब कोलिजन होने से पहले। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है कोलाइड होने से पहले और कोलाइड होने के बाद। आफ्टर कोलिजन दिया है मोमेंटम उसका m1v1 एंड बिफोर कोलिजन दिया है m2v2। यस, अब फोर्स क्या रहेगा आफ्टर कोलिजन एंड बिफोर कोलिजन? सपोज F2 इज इक्वल्स टू -F1 लिया मैंने। ठीक है, जैसा यहाँ पे आप देख सकते हो। तो फोर्स का जो डेफिनेशन बताया था, फोर्स इज नथिंग बट माँ। ठीक है, फोर्स जब याद आया तो माँ को याद करने का। ठीक है, दैट इज m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो F2 दिया है, यहाँ पे यूज़ किया है राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर, तो m2 इंटू A2 रहेगा। एंड राइट हैंड साइड के ऊपर आप देख सकते हो -F1 लिखा है, तो माइनस साइन विल रिमेन सेम। एंड फोर्स का जो डेफिनेशन रहेगा मास इंटू एक्सेलरेशन, वो एज इट इज पुट कर सकते हो m1a1। तो एक्सेलरेशन आपको पता है, फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ द पॉइंट बता रहा हूँ, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। ठीक है, आप इसको बदल मत देना। तो एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी दैट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। यस, तो फाइनल वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय v एंड इनिशियल वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय u। यस, v माइनस यू डिवाइडेड बाय t दैट इज a। तो यहाँ पे a का वैल्यू पुट कर सकते हो आप सेकंड या फर्स्ट इक्वेशन के अंदर, दैट इज m2a2 की जगह आप लिखोगे v2 माइनस u2 डिवाइडेड बाय t एंड इज इक्वल्स टू -m1a1 की जगह लिखोगे v1 माइनस u1 डिवाइडेड बाय t। यस, तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों साइड के ऊपर राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर टाइम डिवीजन में है, तो टाइम सेम है, टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो m2 फिर ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, m2v2 माइनस m2u2 इज इक्वल्स टू -m1 मल्टीप्लाई होगा v1 माइनस u1 को, तो माइनस m1v1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, m1u1 मिलेगा। यस, तो मैंने क्या किया, पार्ट को m1 ये राइट हैंड साइड के ऊपर जो -m1v1 है उसको लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर लेके आया, तो m1v1 प्लस m2v2 विल रिमेन सेम। ये जो -m2u2 है लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर, उसको राइट हैंड साइड के ऊपर लेके गया, तो m1u1 प्लस m2u2 हो जाएगा। यस, तो यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, जो m1v1 प्लस m2v2 है लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर, दैट इज फाइनल मोमेंटम। यस, मैग्नीट्यूड ऑफ फाइनल मोमेंटम। एंड राइट हैंड साइड के ऊपर देख सकते हो आप m1u1 प्लस m2u2 दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल इनिशियल मोमेंटम। ये इनिशियल मोमेंट है, ये फाइनल मोमेंटम है जो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर है। यस, तो यहाँ पे क्या आया, दोनों इक्वल्स टू आया। ठीक है, दोनों के बीच में इक्वल्स टू का साइन है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स कोलाइड। ठीक है, जब दो ऑब्जेक्ट कोलाइड होंगे तब उसका टोटल मोमेंटम क्या रहेगा, बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ठीक है, सिंपल है, यहाँ पे मैंने विथ डेरिवेशन आपको डिस्क्राइब किया है, उसका डेफिनेशन है, इसको हाइड करता हूँ एंड आई विल जूम इट। यस, लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन के अंदर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन डिस्कस किया आप लोगों को, आई विल ओपन फॉर यू। एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपको डिस्कस किया। अगर आप लोगों को सिंपल लगने के लिए आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट फॉर दिस। यस, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है, तो उसके अंदर फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ है। मैं रिवाइज करता हूँ इस चैप्टर को, सब टॉपिक को। दैट इज फर्स्ट लॉ के अंदर दिया है कि अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन के अंदर है तो मोशन के अंदर ही रहेगा, अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा जब तक आप उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करोगे तब तक। ठीक है, सेकंड दिया है, सेकंड लॉज ऑफ मोशन, जैसा कि अभी फॉर्मूला आपको डिस्कस किया था, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, दिया है v/t, और जब v/t का वैल्यू एक ही जगह पुट करोगे फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा m इंटू वी डिवाइडेड बाई टी। तो m इंटू वी वी नो दैट
दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड एज मोमेंटम। तो मोमेंटम का वैल्यू आएगा P इज इक्वल्स टू एम इंटू वी। तो P का वैल्यू आया, दैट इज फोर्स मिलेगा आपको, फोर्स इज इक्वल्स टू P इंटू पी डिवाइडेड बाय टी। यस, तो अगर इक्वल्स टू का साइन हटा दिया तो फोर्स और P के रिलेशन में आ जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन। तो आप बोल सकते हो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड एंड द चेंज ऑफ मोमेंटम ऑकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, अगर आपको सेकंड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट याद नहीं आ रहा, पहले एक्सप्लेनेशन लिखो। ऑटोमेटिकली बाय द लास्ट फॉर्मूला F इज इक्वल्स टू P बाई टी आप लिख सकते हो। इज इक्वल्स टू साइन हटा दिया तो F इज इक्वल्स टू दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, इतना लिखा तो भी चलेगा। नेक्स्ट इज थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, अगर आप कोई रास्ते से जा रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या किया, एक आदमी आया आपके पास, आपको थप्पड़ मारा, तो क्या आप शांत बैठोगे, शांति से घर जाओगे? नहीं, आप भी उसको एक यू विल गिव, वो आदमी ने आपके ऊपर एक्शन किया तो आपका रिएक्शन भी होगा वहाँ पे। ठीक है, तो रिलेट दिस एग्जांपल विद दिस थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो ये टॉपिक मैं यहाँ पे कंप्लीट कर रहा हूँ, इसको मैंने हाइड किया सपोज। नेक्स्ट टॉपिक इज इक्वेशन ऑफ मोशन बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। यस, इक्वेशन ऑफ मोशन बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड एंड ग्राफिकल मेथड दोनों है, मैंने आपके लिए सिर्फ ग्राफिकल मेथड का इस्तेमाल किया है यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने इसको आपको दिखाया। तो देयर इज अ ग्राफिकल मेथड और उसके ऊपर कुछ सब टॉपिक्स है। ग्राफिकल मेथड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के अंदर फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। यस, तो यहाँ पे आप पूरा देख सकते हो। यस, न्यूटन फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ है एंड थर्ड लॉ है। ठीक है, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ किसके किसके रिलेशन है उसके अंदर? ठीक है, फर्स्ट लॉ के अंदर तो वेलोसिटी एंड टाइम का रिलेशन है। यस, सेकंड लॉ के अंदर आप देख सकते हो रिलेशन बिटवीन, उसी को आपको क्वेश्चन आ सकता है, डिराइव्ड बाय द ग्राफिकल मेथड, रिलेशन बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। यस, या एक्सप्लेन the relation between the displacement and velocity, that is nothing but he is asking the third law of motion। ये आपको न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे दो ग्राफ्स है। ठीक है, वेलोसिटी एंड टाइम, दो पिक्स है यहाँ पे, एक ग्राफ है वेलोसिटी एंड टाइम का एंड एक के अंदर एक फोटो ऐड किया है मैंने, इसके अंदर आपको एक्सप्लेनेशन दिया है अबाउट द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ दिया है। एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम है, वाई एक्सिस के ऊपर वेलोसिटी है। यस, तो ऑब्जेक्ट का जो इनिशियल वेलोसिटी रहेगा डी पॉइंट के ऊपर है। यस, डी पॉइंट से ऑब्जेक्ट ने कुछ डिस्प्लेसमेंट या ट्रैवल किया ऑब्जेक्ट ने अप टू डी पॉइंट टू बी। ठीक है, तो बी पॉइंट के ऊपर वो ऑब्जेक्ट आने के बाद उसका जो वेलोसिटी हो जाएगा वो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा और हमने वहाँ पे डिनोट किया है बाय लेटर वी। यस, मैंने आपको ग्राफ समझाने की कोशिश की और हमने कंस्ट्रक्शन ड्रॉ किया, कंस्ट्रक्शन फॉर द ग्राफ। दैट इज कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या किया है हमने, यू कैन सी हियर, मैंने जूम किया है थोड़ा। तो बी पॉइंट से मैंने कुछ लाइन ड्रॉ किया, वर्टिकल लाइन ऑन एक्स एक्सिस, एंड पॉइंट डी से मैंने पैरेलल टू एक्स एक्सिस एक डॉटेड लाइन ज्वाइन किया और ये दो डॉटेड लाइन मीट होने के बाद मैंने उसको पॉइंट दिया ए पॉइंट। यस, तो यहाँ पे क्या आएगा, वेलोसिटी आप देख सकते हो, पहला जो वेलोसिटी एंड टाइम के बीच में है। यस, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन पता है, तो पहला लॉ ऑफ मोशन मैं यूज़ कर रहा हूँ बाय यूजिंग द ग्राफिकल मेथड, मैं डिराइव कर रहा हूँ। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू आपको पता है चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यस, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये आपको पता है। तो यहाँ पे मैंने स्क्रीन के ऊपर फिट किया है ये पेज को। तो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला रहेगा
जो याद है आपको वो लिख दिया है आपने, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी इट इज़ नथिंग बट फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी का डिफरेंस रहता है। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी है कैपिटल वी। यस, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी रहेगा, देख सकते हो कैपिटल वी है। ओ ओरिजिन से लेके सी पॉइंट तक ओ सी डिस्टेंस दिया है। इनिशियल वेलोसिटी आपको देखने को मिलेगी दैट इज़ ओ टू डी पॉइंट। तो ओ सी माइनस ओ डी डिवाइडेड बाई टी, ये एज पर ग्राफ मैंने इस स्टेप को ऐड किया है, ओ सी माइनस ओ डी डिवाइडेड बाई टी। ओ सी का वैल्यू रहेगा कैपिटल वी दैट इज फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी रहेगा माइनस यू, ठीक है, वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, ये ए का वैल्यू आया। तो ऑब्वियसली जो डिनोमिनेटर का पोर्शन रहेगा टाइम टी का, वो टी एक्सेलरेशन ए के साथ मल्टीप्लिकेशन में जाएगा एलएचएस में, तो ए टी इज इक्वल्स टू कैपिटल वी माइनस यू आएगा। तो जो राइट हैंड पोर्शन में माइनस यू है, अगर उसको लेफ्ट हैंड साइड पे एक्सचेंज किया, सब्स्टिट्यूट किया, तो वैल्यू मिलेगा कैपिटल वी इज इक्वल्स टू कैपिटल यू प्लस ए टी। यस, तो इट इज़ द एक्सप्लेनेशन फॉर फर्स्ट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, या इट इज़ द एक्सप्लेनेशन फॉर वेलोसिटी एंड टाइम। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिराइव द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम, तो आप ये एक्सप्रेशन को लिख सकते हो। 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है। एज वेल एज यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन द वेलोसिटी एंड टाइम, ठीक है, ग्राफ भी पूछे जाते हैं एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को कवर करने का कोशिश किया। नाउ नेक्स्ट वी विल सी द न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो यहाँ पे इमेज ओपन कर रहा हूँ। यस, न्यूटन्स 2 इमेज होना चाहिए इसके अंदर, देखेंगे। इसका इमेज ऐड करना भूल गया, अभी ऐड कर देता हूँ, जस्ट अ मिनट। एंड हियर इट इज़ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के अंदर सेकंड न्यूटन लॉ ऑफ मोशन है। तो वहाँ पे 2 डायग्राम को मैंने ऐड किया है। यस, तो सेम डायग्राम रहेगा, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, दैट इज़ द सेम ग्राफ फॉर वेलोसिटी एंड टाइम, ठीक है। टाइम एंड वेलोसिटी का सेम ग्राफ रहेगा, लेकिन मैंने बाय हैंड रिटन, ठीक है, आपके लिए हैंड रिटन ड्रॉ किया आपको समझने के लिए, और वर्टिकल हैचिंग लाइन दिया वहाँ पे, ठीक है। वर्टिकल लाइन्स आर गिवन फॉर द शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन क्या हुआ, इट इज़ कॉल्ड एज द एरिया ऑफ दैट क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, उसको बोलते हैं एरिया ऑफ दैट क्वाड्रिलेटरल, दैट इज ट्रैपेजियम, या एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आप बोल सकते हो। यहाँ पे दिया है मैंने सेकंड स्टेप के अंदर, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, नेक्स्ट रेक्टेंगल, दैट इज डी ए ई ओ, यस, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी या डी ए बी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा दैट इज लेंथ इनटू, जो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल के अंदर हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखा है। रेक्टेंगल का रहेगा लेंथ इनटू, जस्ट अ मिनट, रेक्टेंगल जो रहेगा दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। तो क्या दिया है भाई, ए ई इंटू ओ ई, ए ई इंटू ओ ई दिया है। एंड नेक्स्ट आप देख सकते हो दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल दैट इज डी ए बी का जो एरिया ऑफ ट्रायंगल रहेगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस रहेगा डी ए या ए डी एंड हाइट रहेगी ए बी, ठीक है। वी हैव टू पुट दिस वैल्यूज। ए ई का जो वैल्यू है यू रहेगा इनिशियल वेलोसिटी, ओ ई का वैल्यू क्या रहेगा, टाइम टी टेकन, यस, प्लस हाफ एज इट इज इनटू ए डी का जो वैल्यू रहेगा, जस्ट अ मिनट, ए डी का जो वैल्यू रहेगा, ए डी का वैल्यू रहेगा टाइम टी, यस, आप देख सकते हो इट इज़ पैरेलल टू ओ ई का वैल्यू टी हुआ,
तो ए डी का वैल्यू भी टी रहेगा। एंड ए बी का वैल्यू रहेगा, ए बी का वैल्यू हाइट दिया है, ए बी इज द हाइट एंड हाइट इज दैट इज ए बी, तो कितना रहेगा, यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ आपको व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी। ठीक है, ए ई कितना है, यू है, एंड ई टू बी कितना है, वी है। ठीक है, और ए भी आपको फाइंड आउट करना है, तो ऑब्वियसली सिंपल बात है, ये पूरा वी माइनस यू करेंगे, ए ई का यू करेंगे तो आपको ए बी मिलेगा, तो ए बी का वैल्यू आया वी माइनस यू। ठीक है, यस, तो यहाँ पे जो वैल्यू आया इसको मैंने नाम दिया सेकंड इक्वेशन। अब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट इक्वेशन, जो फर्स्ट इक्वेशन हमने डिराइव किया v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो ये जो v रहेगा v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये u जो रहेगा आपने उसको लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर लेके आया v माइनस यू, क्योंकि आपको सेकंड इक्वेशन में v माइनस यू का वैल्यू पुट करने का है। यस, तो v माइनस यू का वैल्यू पुट किया तो ए टी आया, तो s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ t इंटू ए टी आएगा, तो ऑब्वियसली है ए टी इंटू टी जो रहेगा ए टी स्क्वायर आएगा, तो s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर मिलेगा। यस, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो थर्ड इक्वेशन मिला आपको, दैट इज थर्ड इक्वेशन गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। यस, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम के बीच में रिलेशन है। यस, तो इट इज़ ऑल अबाउट द न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, मैंने इसको हाइड किया। नेक्स्ट इज अबाउट द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो आपको फिर से यहाँ पे डायग्राम देखने को मिलेगा, वेलोसिटी एंड टाइम के बीच में जो रिलेशन है उसका, दैट इज ग्राफ ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम। टाइम इज गिवन ऑन एक्स एक्सिस एंड वेलोसिटी इज गिवन ऑन वाई एक्सिस, सिंपल वही है। जैसा कि अभी सेकंड लॉ के लिए यहाँ पे मैंने फिर से आपको दिखाया हो, हमने एक क्वाड्रिलेटरल लिया था। यस, सेकंड लॉ के लिए हमने क्या किया था, एक इसको क्वाड्रिलेटरल कंसिस्ट किया था जो हैचिंग लाइन है उसके लिए। यस, सपोज इसको हाइड किया एंड थर्ड लॉ आपको दिखाया, तो क्या दिखेगा, थर्ड लॉ दिखेगा। थर्ड लॉ के अंदर एक हमने क्या लिया, इसको ट्रैपेजियम कंसिस्ट किया, कंसिडर द ट्रैपेजियम। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रैपेजियम दैट इज डी ओ ई बी। ठीक है, ये ट्रैपेजियम का एरिया है एंड उसके लिए फॉर्मूला जो रहेगा ट्रैपेजियम का फॉर्मूला आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, दैट इज एस इज इक्वल्स टू हाफ इंटू सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। ठीक है, पैरेलल साइड के अंदर जो डिस्टेंस आएगा वो डिस्टेंस। यस, तो यहाँ पे क्या है, लेंथ ऑफ पैरेलल साइड ओ डी है एंड प्लस बी ई है। ठीक है, दे आर पैरेलल लाइन्स टू ईच अदर एंड द डिस्टेंस बिटवीन ओ डी एंड ओ बी ई इज दैट इज ए डी या ओ ई लिख सकते हो आप। ठीक है, मैंने ओ ई लिखा है। हाफ इंटू ये क्या आएगा, इनिशियल वेलोसिटी यू रहेगा ओ डी एंड ओ टू बी इट इज़ फाइनल वेलोसिटी वी, तो हाफ इंटू वी प्लस यू रहेगा इंटू टी। यस, मैंने इसको इक्वेशन नंबर 4 दिया एंड आपको पता है एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम को मैंने लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर लिया, एक्सेलरेशन को डिनोमिनेटर में खींच के लाया, तो टाइम इज इक्वल्स टू वी माइनस यू डिवाइडेड बाय ए आएगा। ये फिफ्थ इक्वेशन हुआ। फिफ्थ इक्वेशन को अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा फोर्थ इक्वेशन के अंदर, तो टाइम की जगह आपको देखने को मिलेगी दैट इज एस इज इक्वल्स टू हाफ एंड ब्रैकेट में रहेगा u प्लस वी और नेक्स्ट आएगा इंस्टेड ऑफ टी v माइनस यू डिवाइडेड बाय ए। तो यहाँ पे ऊपर है v प्लस यू v माइनस यू, तो एंड डिनोमिनेटर में आएगा 2 इंटू ए दैट इज 2a, a प्लस बी एंड a माइनस बी का आपने फॉर्मूला सीखा है दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे मिलेगा आपको v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। 2a को मैंने s की तरफ मल्टीप्लिकेशन में लेके आया लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर,
तो 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर मिलेगा। जो यू स्क्वायर है राइट हैंड साइड के ऊपर वो आपने लिया टू द लेफ्ट हैंड साइड, तो आपको मिलेगा वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी यू स्क्वायर प्लस 2as, and this equation is all about gives an expression for Newton's third law of motion। ठीक है, ये एक्सप्रेशन आपको न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के लिए आपको डेरिवेशन देगा। ठीक है, अभी तक आपने ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन या इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय यूजिंग द ग्राफिकल मेथड के अंदर आपने 3 सब टॉपिक के बारे में डिस्कस किया। तो पूरे तकरीबन 1 घंटे के अंदर पूरे टॉपिक को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है आप लोगों के लिए। तो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि मैंने माइंड मैप के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश किया। और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि एक आदमी जो किसी को चीज़ शेयर करता है, किसी को एक आइडिया शेयर करता है, तो उस आइडिया के ऊपर उस चीज़ जो शेयर कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आदमी किस तरीके का इंसान है। यस, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप किसी को शेयर करना पसंद करोगे। यस, तो क्या होगा कि आपकी जो इमेज रहेगी दूसरों के अंदर, जो सामने वाले आदमी के अंदर, वो ग्रेटफुल रहेगा आपके। सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो।